એટલે એક સંતમાં અને એક સાધારણ વ્યક્તિમાં ફરક શું હોય છે કે જયદીપભાઈને કોઈ બી પીડા આવે તો જયદીપભાઈને લાગે છે મારી પીડા છે, મને પીડા આવી, મને તકલીફ આવી, મારી સાથે જ પરેશાની થઈ. તમે સમજે? એ મારું 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 પાછળ રહે છે, એને હિસાબે પીડા છે. અને એક સંતમાં શું ફરક હોય કે પીડા આવતી હોય એને બી તમારા જેટલી જ આવતી હોય, સમજી લેજો, પણ એના માટે એ પીડા હંમેશા એક દૂરી પર રહે છે કે ભાઈ પીડા આવી છે શરીરને, મને નથી આવી, જયદીપને આવી છે, મને નથી આવી. એ એમની અવસ્થા હોય, એ એમની દ્રષ્ટાપણું હોય જેની કમી છે. હવે એ આવે કેવી રીતે? એ દ્રષ્ટાપણું આવે કેવી રીતે? એ કલા કેવી રીતે આવે? એ આવે ધ્યાનથી. તમે જો રેગ્યુલર ધ્યાન કરશો 1 કલાક તો એ ધ્યાન ધીરે 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 એ કલા લાવશે કે તમે હર પરિસ્થિતિમાં તમારા દ્રષ્ટાને બનાવી રાખશો, સાક્ષીને બનાવી રાખશો. એ કળા આવડી જશે. અને જે દિવસે કળા આવડી ગઈ ને એ દિવસે હરેક પરિસ્થિતિમાં તમે આનંદિત રહેશો, જન્મ કમલવત રહેશો. પીડા તો આવશે જ. હું એમ નથી કહેતો કે પીડા તો હું તમારી પીડા દૂર નહીં કરી શકું, કે કોઈ બી નહીં કરી શકે. તમે સમજી લેજો. મશીન ખરાબ થયા તો ખરાબ થયા, 1 નહીં 4 ખરાબ થયા તો 4 ખરાબ થયા, પણ એ ખરાબ થશે. તમે સમજાય? એને તો કોઈ બદલી નહીં શકે. બીમારી કાલે આવશે, તમને તો આવશે, એને હું કોઈ બદલી નથી શકવાનો. મૃત્યુ કાલે આવશે તો આવશે, તેને કોઈ બદલી નથી શકવાનો. હવે આપણું મન શું છે, એને અસ્વીકાર કરે છે અને એની સાથે અટેચ થઈ જાય છે. બસ આ પીડા છે. તમે રાજી થઈ જાઓ પહેલા તો કે આ જે બધી પરિસ્થિતિ છે આવવાની જ છે, આજે નહીં તો કાલે આવશે, અને કાલે નથી આવતી તો ધન્યવાદ આપજો પરમાત્માને, પણ આવશે ખરી. એ વસ્તુ સમજી લેજો. આપણે શું સમજીએ છીએ, નથી આવવાની અને આવી ગઈ મારી પર, જાણે નારાજ છે પરમાત્મા મારી પર, એવી ધારણા બંધાઈ જાય છે. ઈ વસ્તુ આપણને પીડા લાવે છે. તમે સ્વીકાર કરો એને, રાજી થઈ જાઓ, અને સાથે સાથે ઈ દૂરી બનાવો કે આ જે થઈ રહ્યું છે જયદીપને થઈ રહ્યું છે, મને નથી થયું. બસ આ કલા જેમ જેમ આવડશે, વિકસિત થશે, એમ સહજ તમારી પીડાથી તમે મુક્ત થઈ જશો. કારણ કે હવે પીડા મારી નહીં રહે, હવે જયદીપની રહેશે. બસ આટલી જ વાત છે. તમે જયદીપની પીડાને તમારા માથા પર ટોપલો બનાવીને બેસાડી દીધો છે. તમે ટોપલો લઈ લીધો છે કે ભાઈ ભાર તો હું જ ઉચકીશ. બોલો, કૂતરો ગાડાની નીચે જાતો હોય તો એને કેવું હોય કે હું જ ગાડું આંકો છું. બસ એવો ભ્રમ તમને થઈ ગયો છે. બસ બીજું કઈ નથી. આ સંસારીના આ ભ્રમ હોય છે કે હું જ ચલાવું છું, મારાથી જ બધું ચાલે છે, હું જ પત્નીને સંભાળું છું, હું જ છોકરાઓને સંભાળું છું, હું જ મા બાપને સંભાળું છું, મારાથી જ બધી વ્યવસ્થા છે. હા, એ બધું મારે કરવાનું છે એવું થાય એમ. એના બદલામાં તું કઈ આપતો નથી, આઉટપુટ. યસ. તો એ જે હું કરું છું તો જે ભ્રમ છે ને એ તોડવો પડે. બરાબર. બસ તો એ ધ્યાનથી આવશે. ધ્યાન કરતા રહો. એવી રીતે બેસીને ન ફાવતું હોય તો થોડું નાચીને કરો. નાચવું તો ગમે ને, 1-1.5 કલાક, 10 મિનિટ, 20 મિનિટ, એ નહીં? પેલા વોકિંગ કરીને કરે તો ચાલે ને? હા, ગમે તે કરો ને. વોકિંગ કરો અને પછી 15 મિનિટ સારું મ્યુઝિક જે બી તમને ગમતું હોય, જેમાં તમે ડાન્સ કરી શકો. પિક્ચરના સોંગ ચાલે? કોઈ બી ચાલે. નાચવા એક હલકાપણું આવવું જોઈએ. આપણે કેમ લગ્નમાં નાચીએ છીએ મસ્તીથી, એવી રીતે એક હલકાપણું આવવું જોઈએ. મતલબ નાચવાનું છે, શરીરને પૂરો વ્યાયામ આપવાનો છે, પસીના થઈ જવાનું છે. અને 15-20 મિનિટ સારા મ્યુઝિકમાં મસ્તીથી નાચો, લાઉડ અવાજ કરીને રૂમની અંદર, અને પછી 15 મિનિટ એકદમ શરીરને છોડી દો જાણે મરી ગયા છો. થાકી જાઓ, એટલે થાકીને લોથપોથ થઈ જાઓ, પસીના થઈ જાઓ, અને શરીરને છોડી દો જમીન ઉપર. પછી કાંઈ કરવાનું નથી, કોઈ વિચાર નથી કરવાનો, કોઈ સાક્ષી નથી રહેવાનું, બસ છોડી દો. બસ આટલું તમે કરો. કોઈ પ્રયોગ થાય કે ના થાય, આટલું કરો. આ તો થઈ શકે, બહુ ઈઝી વ્યવસ્થા મેં આપી છે. હા, એ થઈ શકે. હા, 15-20 મિનિટ મસ્તીથી નાચો. જેને નાનું બાળક હોય ને, કેવી ધમાલ મસ્તી કરતો, બસ એવી ધમાલ મસ્તીથી નાચવાનું છે. એવું 15-20 મિનિટ કરો. મ્યુઝિક તમારું જે તમને ગમતું એ મ્યુઝિક લગાડો, જેનાથી તમે આરામથી નાચી શકો. અને પછી 15-20 મિનિટ એકદમ લેટી જાઓ, શરીરને છોડી દો જમીન પર.
બીજું કાંઈ કરવાનું નથી એમાં. જાણે મરી ગયા છો, મરી ગયા માણસ કાંઈ નથી કરે, કાંઈ જ કરવાનું નથી, નથી શ્વાસ પર ધ્યાન આપવાનું, નથી કાંઈ કરવાનું, બસ છોડી દેવાનું, જાણે મરી ગયા છે. પછી હલવાનું બી નથી 15-20 મિનિટ, બસ એટલું કરો. અને મારી વાઈફ પ્રત્યે મને એટેચમેન્ટ છે ને, પ્રેમ જેવું કઈ છે જ નહીં એવું લાગે તો છોકરી પ્રત્યે. હમણાં એકદમ છે ને હાર્ટ ભાગ એકદમ દબાઈ ગયો હોય ને એ બધું રિલીઝ થશે, કારણ કે એક પ્રકારની જડતા આવી ગઈ છે, કઠોરતા આવી ગઈ. હા બસ રિજિડનેસ બહુ કોન્ક્રીટ થઈ ગઈ. એનું કારણ છે કે શરીર સાથેનું જયારે અટેચમેન્ટ વધે ને, માઇન્ડ એક્ટિવ થાય ને વધારે, ત્યારે એ વસ્તુ આવે, જડતા આવી જાય. બરાબર. તો ઈ સંવેદના વધશે દિન પ્રતિદિન. જેમ આ પ્રયોગ કરશો ને તમે રેગ્યુલર થોડા દિવસ, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે વાઇફ પ્રત્યે બી પ્રેમ વધશે, છોકરા પ્રત્યે બી પ્રેમ વધશે. ઓટોમેટિક એ સંવેદનાઓ તમારી વધતી જશે, સંવેદનશીલતા વધી જશે. અત્યારે તમે પથરીલા થઈ ગયો છો, બસ એટલો જ ફરક છે. એટલે ઓલું કે ને કે પાણી બરફ થઈ ગયું છે, હવે બરફને ઓગાળવો પડશે થોડો. બસ ઈ ધ્યાનથી ઓગળે. બરાબર. એટલે તમે આ કરો પ્રયોગ થોડા દિવસ, તમને ફરક લાગશે. प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी सर जी, मैं आपसे एक समस्या के बारे में पूछना चाहता हूँ। मुझे जो बचपन से जब से मैंने गृह संभाला है, बोलिए। तो उसमें क्या है जी, मैं किसी के मतलब लगाव में पड़ जाता हूँ। जैसे कोई यार दोस्त है या मतलब कोई बदलते रहते हैं, वो मेरे साथ रहने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है जी, मुझे मतलब मेरा उसके बिना मतलब मन नहीं लगता जी कहीं भी जी। तो फिर उसके बाद मतलब रोटी खाते पीते सोते समय तो वो तो धीरे धीरे उसके प्रति प्रगाढ़ हो जाता है जी वो चीजें। तो मतलब जी उसकी बुराइयों पे फिर ज्यादा ध्यान जाने लग जाता है। जैसे मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ फिर उसको कि मतलब ये इसको नहीं करना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों नहीं बोल रहा, तो मेरे साथ किसने ऐसा क्यों किया, ये अकेला क्यों चला गया। तो उन छोटी छोटी चीजों को उनको नोटिस करने लग जाता हूँ, और जिससे मतलब मुझे बहुत भारी प्रॉब्लम होती है, चिढ़ जाता हूँ और अगले को मैं अपने हिसाब से नहीं बना पाता, और इसलिए बहुत ज्यादा द्वेष भावना पैदा हो जाएगी फिर उसके प्रति जीवन में। देखो, एक तो पहली बात, ये जो प्रेम हो जाना मतलब उसके प्रति लगाव हो जाना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। उसमें कुछ मतलब कोई गलत, कोई आपका इंटेंशन तो गलत है ही नहीं, आप उसका भला ही चाह रहे हैं, पहली बात। तो ये तो शुभ लक्षण है, क्योंकि हृदय एक्टिव है, मतलब हृदय से जी रहे हो तो ये सुंदर बात है। लेकिन अब होता क्या है कि हृदय से जब तुम जीने लगते हो ना, तो फिर एक मालिकियत का भाव आने लगता है कि भाई मालिकियत का, कि अब वो मैं बोलूं वैसा वो करे। ये किसी स्त्री के प्रति है कि पुरुष स्त्री दोनों के प्रति है? ज्यादातर मैं अपने दोस्तों के संपर्क में आया हूँ जी अभी तक तो। ठीक है। और उनके प्रति और स्त्री के प्रति भी हो जाता है जी। हाँ ठीक है। नहीं, प्रेम है तो कहीं भी बहेगा। प्रेम का मतलब ये है वो बहेगा। अब वो बहना और आपके अंदर से प्रेम फूट रहा है, वो सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है। ये उम्र में अगर प्रेम फूट रहा है, ये शुभ लक्षण है, पहली बात तो। इसको बिल्कुल नेगेटिवली मत लेना। अब रही बात, वो जो बह रहा है, सीधी सी बात है कि उस पर फिर मालिकियत करने का मन होता है। ये मन है ना, मालिकियत में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब मन बचना मुश्किल हो जाता है, मन को मिटना पड़ता है। जितना तुम प्रेमपूर्ण होते हो ना, उतना मन मिटता है, अहंकार मिटता है। अब जब वो इतना बहने लगता है, मतलब जब तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तुम रोक नहीं पाते और वो बहते जाता है। बाढ़ आती है ना, जैसे तुम रोक नहीं पाते, वैसे प्रेम बहता है। तब मन फिर एक नई चालाकी करता है, मन एक नया खेल करता है, उस पर मालिकियत थोपने लगता है कि भाई अभी ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा वैसा वो करेगा, मेरे साथ ही रहना चाहिए। हाँ, मेरे साथ ही रहना चाहिए।
ये एक प्रकार की ईर्ष्या हो जाती है, इसको ईर्ष्या कहते हैं। हाँ, स्त्री ईर्ष्या करती है ना? ईर्ष्या। हाँ, जी तो ये ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या अहंकार का शीर्षासन करता हुआ रूप है और कुछ नहीं। अहंकारी जी। होता है जो शीर्षासन कर रहा है। हाँ, अहंकार है। अहंकार शीर्षासन कर रहा है। तो ये जी। इसको थोड़ा देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय इतना ही, उसको देखो कि ये खेल चल रहा है, मन जी। खेल कर रहा है, अहंकार के माध्यम से शीर्षासन करते हुए वो खेल कर रहा है, और तुम उसकी बातों में उलझो मत, बस इतनी सी बात है। तो थोड़ा देखने में हाँ जी। माहिर होते जाओगे ना, वैसे वैसे उससे दूरी बन जाएगी, मतलब वो अपने आप गिर जाएगा। हाँ मन का एक नियम है, जब भी जी। तुम मन के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करोगे ना, मन फिर से हावी हो जाएगा, और तुम सिर्फ उसको देखोगे ना, उसके खेल को देखोगे। बच्चा कूदता है, नाचता है, उसको तुमको शांत बैठो तो बिल्कुल शांत नहीं बैठता है, वो और परेशान करता है। तुमने गौर किया होगा। हाँ जी। अब तुम करते क्या हो कि ठीक है, तू नाच रहा है, कूद रहा है, परेशान को हो रहा है, ठीक है, हो। फिर वो क्या होता है, थक जाता है। फिर वो थक जाता है। एक समय आता है ना, तो वो थक जाता है और फिर अपने से बैठ जाता है। जी। समझ रहे हो? बस ऐसा ही कुछ मन का है हिसाब। मन को अगर तुम रोकने की कोशिश करोगे तो बच्चे की जैसी अवस्था होती है ना, हाँ जी, कि उसको जितना तुम रोकोगे वो जोर से नाचेगा, जोर से खेलेगा, जोर से परेशान होगा। हाँ जी। बस ऐसा ही कुछ है कि मन के साथ जब तुम कुछ करोगे ना, कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो वो और बेचैन होगा और परेशान करेगा। उसको तो तुम सिर्फ देखो, वो बच्चा कैसे थक जाता है और फिर बैठ जाता है, सारी ऊर्जा चली जाती है, बेचैनी चली जाती है और फिर बैठ जाता है। फिर आप उसको बोलो नाचो, अब तो नाच नहीं पाएगा क्योंकि ऊर्जा चली गई। तो ऐसे ही ये सब चीज तुम्हें देखनी है, सिर्फ वो देखोगे, उसको देखते रहो तो अपने आप एक दिन मन थकेगा, हारेगा और बैठ जाएगा। आप समझ रहे हो? ये इसका उपाय यही है कि सिर्फ देखो और परिणाम आएगा। बाकी रही बात इसकी, ये थोड़ा होगा क्योंकि अब मन मिटने के करीब है। आपकी ऊर्जा की अवस्था बहुत सुंदर है, एनर्जी लेवल बहुत सुंदर है। तो आप ध्यान वगैरह करते हो क्या अभी? जी करता हूँ जी। कौन सा ध्यान करते हो? जी यहाँ पे कैथल में और सुप्रमाश्रम में भी कई प्रकार की विधियां करवाई जाती हैं जी। कौन सी विद्या? जैसे ब्रह्मना, कई प्रकार की करवाई जाती हैं, ब्रह्मनाद, अच्छा जी, ओमकार विधि, और जैसे जी डांसिंग वगैरह। आश्रम है वहाँ पे? हाँ जी, आश्रम है जी। अच्छा, ओशो का? हाँ जी। अच्छा, वहाँ आप करते हो? ओके जी। नहीं, सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन अभी धीरे धीरे आपको ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो अवस्था है ना, जब प्रेम इतना फूटने लगे ना, ध्यान क्यों करना था? क्योंकि प्रेम का स्रोत रुका हुआ था। बात समझो, प्रेम बह नहीं पा रहा था, राह में पत्थर थे, अड़चने थी, इसलिए ध्यान से गुजरना पड़ता है। जो ठीक से ध्यान से गुजरता है, ठीक से ध्यान की अग्नि में पकता है, तो परिणाम में प्रेम फूटने लगता है, बहने लगता है, जो आपके साथ हो रहा है अभी जी। समझ रहे हो? तो अभी फिर ध्यान क्यों करना है? ध्यान का कोई लॉजिक नहीं रहता है। फिर दवाई तब तक लेनी है जब तक स्वास्थ्य ना आ जाए। अब स्वास्थ्य आ गया, हृदय से जीने लगे तुम। आज के लोगों की बीमारी क्या है सबसे बड़ी? कि वो हृदय से जीना भूल गए, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, समझ रहे हो? और जो तुम जी रहे हो, मजे की बात है। तो ये हाँ, तो इसलिए स्वास्थ्य जैसे जैसे आएगा, सीधी सी बात है, दवाई छूटने लगेगी। अब दवाई की जरूरत ना पड़ेगी। अब तो बिना कुछ किए ध्यान में रहना है जी, बिना कुछ करे ध्यान में रहना है, उठते बैठते खाते पीते ध्यान में रहना है। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दवाई का नशा बन जाए, दवाई की आदत बन जाए। ऐसी बेचैनी तो नहीं हो रही है ना कि आज प्रयोग नहीं किया तो बेचैन रहूंगा पूरा दिन? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है जी। बस, तो अच्छी बात है, वो लाना भी मत। बहुत से लोगों को होता है ना कि कल 2 दिन प्रयोग नहीं किया तो मैं बेचैन हो गया, परेशान हो गया।
हाँ जी। तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं वो नहीं है जी। समझ रहे हो? नशा मत बनाना ध्यान को। ठीक है, मौज के जी। हिसाब से, मस्ती के हिसाब से, आनंद के हिसाब से उसको करो, अलग बात है, लेकिन वो धीरे धीरे छूटना हाँ जी। चाहिए, करना छूटना चाहिए। एक बात समझ लो, हाँ जी। असली बात है करना छूटना चाहिए। करना जैसे जैसे जी। छूटेगा, सहज ध्यान की अवस्था होने लगेगी, ध्यान 24 घंटे पे हावी हो जाएगा, छा जाएगा। जी। और जितना ध्यान छा जाएगा, सीधी सी बात है, उतना करना छूटना चाहिए, उतनी ही मात्रा में। अगर आपको हाँ लगता जी। है मेरा ध्यान घटा है, तो सीधी सी बात क्या, आपको दिखना चाहिए कि आप करना व्यर्थ है। अब तो मैं बैठ रहा हूं ऐसे ही, ध्यान घट रहा है, आंखें बंद कर रहा हूं, ध्यान में चला जा रहा हूं, आंखें नहीं भी बंद कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, फिर भी ध्यान में जा रहा हूं, ये दिखाई पड़ेगा। हाँ जी। जरा गौर करना है इस हाँ पर। जी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हर चीज को ठीक समझ से रहा हूँ जी। हाँ देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो जी। धीरे धीरे वो करना छूट जाएगा। और जैसे ही वो करना छूट जाएगा, सहज ध्यान की अवस्था रहेगी, और कुछ करना नहीं पड़ेगा, और सब कुछ अपने से होगा, ये अवस्था आएगी। ये है अभी आपकी अवस्था, तो उसकी चिंता मत करो जी। आप। रही बात आपकी जो ये हृदय से जीने की, बहुत सुंदर अवस्था है। आप एक काम करो, मुझे आपका एक फोटो भेज देना, मैं आपकी एनर्जी लेवल देख जी। लूंगा, ठीक है? हाँ जी। हम्म। और सर एक और है जी दिक्कत, हाँ। जैसे जी सर में मेरे बारीपन रहा जी बहुत ज्यादा है, जिस टाइम में ध्यान करूँ जी। क्या फिर से बोलो, सॉरी, धीरे से बोलिए। सर में जो सिर में बहुत ज्यादा भारीपन रहता है जी। वो भारीपन इसके लिए रहता है, ध्यान अभी भी कर रहे हो ना तुम, ध्यान हाँ जी। की आकांक्षा है, चाहते हो हाँ कि जी। ऊर्जा सहस्त्रार पे आ जाए, हाँ जी। ख्याल करते हो ना कि ऊर्जा ऊपर आए। जी। हाँ, ये नहीं करना है अभी। वैसे भी चक्कर सा बने रहा जी, मतलब दिन में भी सारा वो दिन। बनेगा ही ना। आपने क्या किया है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा साथ लिया है ना, दवाई ज्यादा ले लोगे तो रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? जी। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है। दवाई इसलिए दी थी कि सिर्फ तुम नीचे थे मूलाधार में। एक उसको तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे वो मैंने प्रॉब्लम था ये ना कि मतलब उसके बिना नहीं रहा जाता, तो वही दिन वही रात हो जाए, खाना पीना उस टाइम मन में रहा जी, वही बंदा जी मेरा जिससे मैं प्यार करूँ जी। क्या क्या? तो फिर जिस मैंने जो प्रॉब्लम था ना जी आपको, भाई जिस बंदे से मैं प्यार करता हूँ, तो वो ही रहता है मेरे मन में, दिन रात खाते पीते सोते। नहीं, वो वही, आप समझे नहीं। देखो क्या होता है कि जहां से प्रेम बंटना और मिलना शुरू हो जाता है ना, वहां एक एसोसिएशन हो जाता है, एक आकांक्षा बन जाती है। गहरे अचेतन में मांग उसकी उठ जाती है, तुम्हें पता हो ना पता हो, तुम मांगने लगते हो भीतर। और जो भीतर जो मांगना होता है ना, वो जाने अनजाने तुम्हारी चेतना को उस ओर बहाना शुरू कर देती है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये अपने आप होता है, ऐसा नहीं है कि तुम सोचोगे और होगा, क्योंकि अचेतन तुम्हारा आप मजबूत हो गया है, क्योंकि अचेतन से काफी कचरा तुमने निकाल दिया ध्यान के माध्यम से जी। तो अब जो अचेतन की अवस्था है ना, उसमें जब कोई भी गहरे भाव दशा रहती है ना, वो पकड़ लेती है, तो वो सहज ही बहना शुरू हो जाती है, क्योंकि अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा भी लगता है, तो सीधी सी बात वो बहना, हाँ, तो वो बहना शुरू हो जाता है जी। तो करना कुछ नहीं है, मैंने जो कहा आपको, उपाय एक ही है, सिर्फ देखो कि ये खेल चल रहा है। मन पहले बाहर की तरफ खेल कर रहा था, अब भीतर की तरफ खेल कर रहा है, बस इतना देखो जरा। हाँ जी। पहले जब शुरू में तुमने ध्यान शुरू किया तो तुम्हें कहा गया ना कि हर परिस्थिति को देखो, उठने को देखो, बैठने को देखो, चलते हुए देखो, अपने को साक्षी रहो, कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था जी। हाँ, तो वो आपने साध लिया, वो साधते साधते अब भीतर साधने लगे। अब भीतर साधने लगे तो भीतर की अनुभूति ऐसी है कि वहां मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, प्रेम फूट रहा है, प्रेम से भीतर से अचेतन मन जुड़ना चाहता है जी, वो अटैच होना चाहता है, वो मांग करता है जी। वो मांग को गिराना है, और मांग गिरेगी कैसे? सिर्फ देखो, अब जैसे बाहर देख रहे थे साक्षी रहकर, अब भीतर साक्षी रहकर देखो कि बाहर भी खेल चल रहा था, भीतर भी खेल चल रहा है। मैं तो इन सब खेल के पार हूं, बस इतनी सी बात है।